Hello everyone. In today's session, we are going to discuss about the use of has have to make different sentences. Let's start with the first way to make sentence with has have. That will be in present perfect. So first thing is to learn what is present perfect and when and where to use it. Present perfect is a tense which is used to describe an action that has been completed but still relates to present. So simply you can check present perfect को आपने define कैसे करना है? Where there is a relation between past and present. Something you have done but still relates to present. कोई काम जो आपने कर लिया लेकिन वो अभी present को relate करता है. Fine. Now we will come to the rules. Subject has or have will be dependent on the subject. If the subject is I, we, you, they, plural, we will take have. And if the subjects are he, she, it, and when singular, then has will be used after subject. Has a verb third form object. Then rule number 2 in negative, subject has a not will be added here. Then verbs third form object. Rule number 3 in interrogative, has, have, subject, verbs third form object. Please pay attention. Has or have are the helping verb to be used here, and verbs third form. Always keep in your mind कि present perfect जहाँ पे भी sound कर रहा है और you are going to make a sentence on the situation जो खत्म हो चुकी है लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, that relates to the present. Then we will use has or have. Has or have में से choose करना है according to subject and verbs third form. Present perfect में हमेशा verb की third form ही जाएगी. Clear? We will check the examples to make the things more clear. We have not seen each other for months. We subject. We plural has, so we have added have here. Negative बनाया है तो not. We have not and then verbs third form. Each other object. We have not seen each other for months. Clear? Next example. She has left the city recently. She singular. This is why we are taking has after this and verbs third form left the city object recently. Then Rama has cleaned her room. Rama ने अपना room साफ कर लिया है. Rama singular. This is why we are taking has here and again verbs third form and her room. Next example, Rohan and Ravi दोनों को मिला के plural बन गया. Rohan and Ravi have gone to the market. Please pay attention. Have gone to the market. They are still in the market. इस example से ये clear होता है कि present perfect का जो situation होगी वो काम हो भी गया और नहीं भी हुआ या फिर काम हो गया लेकिन अभी भी वो लिंक करता है प्रेजेंट के साथ. तो कमिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे अलग है. प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या सीखा कि एक काम खत्म हो गया बट स्टिल रिलेट्स टू प्रेजेंट. ठीक है, फाइन. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या सीखना है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है. अगेन आई एम रिपीटिंग, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. फाइन. लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. फाइन. Come to the rules. Subject has have, been, verbs first form, ing, object, for, since plus one. Please pay attention. ध्यान से धीरे धीरे चलते हैं. Subject clear? Has have according to subject. Has have आपको पता है कि perfect है तो has have तो आएगा ही आएगा. Then we are using been here. Then verbs first form ing. इन दोनों को clear कर लिए. Why we are using been here? Been is being used because of has have. क्योंकि perfect के साथ हमेशा third form जाती है. Fine.
अब हमारे जो कॉन्टिन्यूस भैया हैं वो हमेशा कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही होनी चाहिए, तो हमने बीइंग को ऐड करके प्रेजेंट परफेक्ट की डिमांड पूरी कर दी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी यूज करके हमने कॉन्टिन्यूस की डिमांड पूरी कर दी एंड देन वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब इनके अलावा एक और नई चीज है यहाँ पे, वो क्या है, फॉर और सिंस प्लस टाइम। इनको भी सीख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप किसी टाइम को ही मेंशन कर रहे हो कि कितने टाइम से कोई काम हो रहा है, ठीक है। चेक, we use for when we only mention the duration। अब for और since का फर्क जानना जरूरी है कि इसको कहाँ पे यूज करना है। For 2 hours, please check when we are mentioning the duration। आप सिर्फ ये बता रहे हो कि उस दौरान ये काम हो रहा है। For few months। Now come to since। Since की हेल्प से आप for को और अच्छे सीख जाओगे। Since is used when we mention the exact time of starting an event or action। When we mention the exact time of starting an action, किसी काम के शुरू होने का हम exact time बता रहे हैं, then we take since। Since 2 o'clock, you can check 2 hours only was telling the duration, but 2 o'clock exactly telling the time when the work started। Since Monday, exact date। Since last year, last जहाँ में भी होगा you will use since before it। Since weekend, weekend is the last day, so itself will take since। Since morning, evening, any part of the day। Clear? So फिर से मैं clear कर रही हूँ कि since when you are certain about starting of an action and for जब आप certain नहीं हो कि काम कब शुरू हुआ, सिर्फ आपको duration का पता है कि इतनी duration में वो काम हो रहा है। Clear? Now we will come to the example। I have been living in Patiala for 12 years। Please check, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बताया कि 12 साल से रह रही हूँ। Fine। Next example, same। I have been living in Patiala since 2011। Exact time जब मैंने दिया 2011, I have used since। But when I said 12 years, this is not telling the exact time, so we are using for here। I hope you have understood this। तो ये थी आपकी second use to make sentence with has have। Now we are coming to the third use of has have। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज हैज टू, हैव टू, हैड टू। सबसे पहले ये है क्या, हैज टू, हैव टू, हैड टू इज यूज्ड व्हेन सिचुएशन मेक्स समथिंग नेसेसरी। जब आपको कोई काम करना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की डिमांड है कि ये करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। सब रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट has have according to the subject please, followed by to and then verbs first form object। Fine। Look at the example। Raman has to go to the bank as he does not have any money। रमन को बैंक जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसको जाना पड़ेगा to withdraw the money। Fine। एंड प्लीज पे अटेंशन हैज, क्योंकि रमन सिंगुलर है एंड रूल को बस रूल के ध्यान देना कि टू एंड देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। वी हैव टू टॉक टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हमें बात करनी ही चाहिए, हमें बात करनी ही पड़ेगी अगर हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। क्लियर? हैव बिकॉज वी प्लूरल, देन टू एंड देन वर्ब्स फर्स्ट। ओवर एंड अगेन मैं आपको एक चीज बार बार बोल रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू मेक सेंटेंस। ये तो क्लियर है। ये जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाला पार्ट है उसी पे फोकस करना है। आज जैसे जैसे वो वाला पार्ट चेंज होता जाता है आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। क्लियर? देन कम टू द नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव में रमन डज नॉट हैव टू गो टू द बैंक। यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन, हैव टू गो वैसे का वैसे, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेजेंट का है
तो डज और डू आप यूज करना मत भूलना. Raman does not have to go to the bank. He already has cash to pay the bills. उसको बैंक क्यों जाना पड़ेगा भाई? उसको नहीं जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कैश है. क्लियर? अगर प्लूरल होता तो that will be followed by do. ये भी क्लियर आपको. Fine. And then come to past. अगर past में हमें ये कहना है, अगर हम कह रहे हैं प्रेजेंट में करना पड़ता है, फ्यूचर में करना पड़ेगा, प्रेजेंट में भी करना पड़ेगा चलता है, लेकिन पास्ट में क्या था? करना पड़ा, उसको जाना पड़ा, उनको ये चीज करनी पड़ी. क्लियर? had to, subject had to go to the hospital, sorry, they had to go to the hospital to see their friend. उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा अपने फ्रेंड से मिलने. had क्योंकि हैजर्ड की सेकंड फॉर्म had बन गई, एंड देन टू गो, वो वही का वही सेम है. ठीक है? और अगर ये नेगेटिव होता फिर आप क्या करते? did not have to. यही चीज आपने जो हैजर्ड की मैंने पहले यूसेज बताई है कि इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, वहां पे भी ध्यान में रखना है कि व्हेन आई से आई हैव दिस ग्रीन मार्कर, फाइन, इफ आई हैव टू से नेगेटिव व्हाट आई विल से आई डू नॉट हैव एनी ग्रीन मार्कर. क्लियर? शी डज नॉट हैव. क्लियर? फाइन. तो नाउ इन फ्यूचर देख लेते हैं. बस आपने यही माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय विल हैव टू, कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये काम करना पड़ेगा. सो फिर से बता रही हूँ, हैज टू, हैव टू व्हेन सिचुएशन डिमांड समथिंग. क्लियर? हैज टू, हैव टू फॉर प्रेजेंट, हैव टू फॉर पास्ट एंड विल हैव टू फॉर फ्यूचर. नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ यूज ऑफ हैज हैव. यहाँ पे हैज को हम सीखेंगे फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब एंड सेकेंड as a main verb. दोनों चीजें अलग अलग है. Please pay attention. Firstly, in the absence of main verb. In the absence of main verb, subject has a noun or adjective followed by noun. ठीक है? यहाँ पे हम सिर्फ ये बात करेंगे that मेरे पास ये है या उसके पास ये है या नहीं है. किसी यहाँ पे हम किसी चीज के होने की बात करेंगे. Fine. I have a beautiful daughter. First example, subject I है इसलिए followed by have and adjective and then noun. Please check यहाँ पे कोई action verb नहीं है. Fine. And then she has an amazing personality. यहाँ पे फिर से हमने उसकी एक trait की बात करी है. यहाँ पे कोई action verb नहीं है. तो जो शायद मैंने इज़ेमार में भी बताया था कि जहां पे एक्शन वर्ब नहीं होता तो वहां पे आप नाउन और एडजेक्टिव का यूज करोगे रेदर देन एनी मेन वर्ब. फाइन. देन एज अ मेन वर्ब हैज हैव खुद ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे आई हैव माई लंच एट 2 o'clock. मैं अपना खाना 2 बजे खाती हूँ. ठीक है? तो ये यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर ये नेगेटिव होगा तो कैसे होगा? I have not had it yet. अभी तक मैंने खाना नहीं खाया. I haven't, और यही have जो है हमारा थर्ड फॉर्म, ये तो हमारा वर्ब हो गया. I haven't had it yet. अभी तक मैंने खाना नहीं खाया. Check the next example. Rohan subject singular followed by has and then has have as a main verb जो कि had बन गया क्योंकि has के साथ थर्ड वर्ब आती है. रोहन हैज हैड हिज लंच ऑलरेडी. रोहन ने अपना खाना पहले ही खा लिया. और फिर कॉन्टिन्यूज में आप इसको कैसे लिखोगे? आई एम हैविंग माई फेवरेट ड्रिंक. मैं तो अभी अपनी फेवरेट ड्रिंक ले रही हूँ. क्लियर? हैव यहाँ पे मेन वर्ब है तो वी हैव एडेड आईएनजी बिकॉज ये कॉन्टिन्यूज में. हैज यहाँ पे मेन वर्ब है तो ये बन गया हैड क्योंकि ये हैज हैड को फॉलो कर रहा है. फाइन. क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट यूज ऑफ हैज हैड. Now we are coming to the third way to make sentence with help of has have. First था present perfect, second present perfect continuous, and now we are using has have in passive structure, of course with help of present perfect formula. सबसे पहले passive structure को revise कर लेते हैं because I have already told about this in the video with Izamar. Fine. तो passive structure होता क्या है? हमारी बात करने का दो वे है. दो वे में एक वे होता है एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव. एक्टिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो खुद एक्शन ले रहा होता है एंड पैसिव में सब्जेक्ट पे एक्शन लिया जा रहा होता है.
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, समटाइम्स हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ यही होता है कि क्या एक्शन हो रहा है उसमें, क्या काम हो रहा है, सिर्फ उसी पे फोकस होता है। एंड समटाइम्स हमारा फोकस इस पे होता है कि काम किसके द्वारा किया गया। अगर तो हमारा फोकस सिर्फ काम पे है कि ये काम हुआ है, फिर तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एजेंट। अगर हमारा फोकस इस पे है कि काम किसके द्वारा हुआ है, देन वी विल ऐड एजेंट। और अभी मैंने पैसिव के बारे में पहली वीडियोस में बताया, आप आराम से इसको देखना, आप समझ जाओगे। ठीक है, चेक द रूल। सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। फिर से क्लियर देखो, हैज है तो आपको पता है कि परफेक्ट का पार्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट ही हो रहा है। निशा यू डिस्टर्बिंग बेटे, प्रेजेंट परफेक्ट ही हो रहा है। फाइन, सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज क्लियर, वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव का रूल है वो भी क्लियर। अब बीइंग, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट की डिमांड है ना, वो अलग से भी तो पूरी करनी है कि इनको भी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और पैसिव को तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो हमने दोनों की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए यहाँ पे बीइंग को ऐड कर दिया कि वो हैज की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी पैसिव स्ट्रक्चर का पार्ट है ही। एंड देन बाय एजेंट व्हेन नेसेसरी। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एजेंट तब लगाओगे जब जरूरी है। आप एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको। They have been invited to the party। यहाँ पे हमारा फोकस किस बात पे है कि उनको पार्टी में इनवाइट किया गया, दैट्स ऑल, कि वो पार्टी में इनवाइटेड है। फाइन, नेक्स्ट, she has been invited to the party by Mrs. Goyal। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उनको पार्टी में किसके द्वारा बुलाया गया, किसने बुलाया उनको। they have been invited by Mrs. Goyal। तो यहाँ पे एजेंट हमसे पूछा गया तो we have mentioned। यहाँ पे हमें सिर्फ यही था कि पार्टी में बुलाया गया, तो we don't need to mention agent here। So आप अपने आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि अगर आपको लगता है कि किसके द्वारा काम हो रहा है ये बताना जरूरी है, only then we will add by plus agent, otherwise you can skip this part। क्लियर? अगेन आपने एक और चीज का ध्यान रखना है, have और has अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे सिंगुलर था तो has, यहाँ पे प्लूरल था तो have। सो ये थी आपकी third way to make sentence with has have। Now we will come to the next part।